सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा जल्दी बस आगे आधा एक घंटा तो फील्डिंग साइड का प्लेयर कोई है क्या बेटा? इधर भेज दो। मैकेनिकल चलेगा।
तुमको ही खेलना है। पहला रन तेज सही है। आशीष भी आराम से। बॉलिंग चला करा फील्डिंग ला मिलता बॉल। साइड बता गोविंद। बस 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 बस। मारेंगे
और किसी को लेना है? Good one, boy. That, all that. चार बॉल हुई, दो बची है. बॉलिंग लास्ट बॉल है. गुड वन. सही जा रहे. गुड वन, सही जा रहा है सर. गया आउट है. आजा. आराम से शुरू. नहीं. अंदर. आजा वापस आजा. सीधा इधर बात छोड़ दे इसको. पैर मत देना. कोई बात नहीं. लास्ट 3 मिनट. शुरू. जा.
Bowling. Catches. 4 है 4. Bowling. Catches. Bowling. Fire ball out. Sir. हमको सिर्फ खड़ा ही रहना है कोऑर्डिनेटर Development should grow side by side. Keeping this thought in mind, our college every year organizes annual day, or we can say that Aradhana, so students can put forth their abilities, their skills, their talents in front of all of us.
In the rush of 21st century, we students forget to inculcate our passion and our interest. Aradhana gives a platform to portray our... I am Renuka Wankhede from Electrical Department, first year. We take immense pleasure in welcoming all dignitaries, guests, principal, vice principal, HODs of all department, teachers and non-teaching staff, as well as all parents, and last but not least, all my dear friends. Welcome to Aradhana 2015. Today, we have with us President of the program, Dr. K.K. Thote Sir, Executive Director of RGI Group, Honorable Chief Guest Shri Pradeep Zoting Sir, General Manager Employee Relation and Development, Mahindra and Mahindra Limited, Nagpur. Guest of Honor, Honorable Shri Anil Ongar Sir, CEO of Ongar Furnitech, Nagpur, and Honorable Shri Manish Upadhyay Sir, Trainer and Motivational Speaker. In our Indian culture, we do not begin any function without worshipping our God. So I request all dignitaries of the dais to proceed towards the lamp lighting and make the beginning of Aradhana 2015. Now I request all the dignitaries to take their seat on the dais. Polytechnic, I request our Honorable Principal, Mr. G.N. Aghade Sir, to welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Rather than I say Polytechnic team of teaching, non-teaching and student, I would like to welcome our today's chief guest, Honorable Sri Pradeep Ji Zoting Sir, General Manager, Employee Relation and Development, Mahindra and Mahindra Limited, Nagpur, who kindly consented to be the chief guest of today's function in spite of his busy schedule. And also, I am really happy to welcome our guest of honor. He is very energetic, always ready to take challenge. Very glad to welcome today's guest of honor, Sri Manish Ji Upadhyay Sir. He is a famous trainer and motivational speaker who also give his time for gracing this function. I am also heartily welcome teaching learning process throughout the year. And I am also welcome all the parents, friends of our student. In today's celebration, our main heroes are our students. So, I also welcome them. Our college has outstanding reputation and I am proud to be the part of such prestigious institute.
GHRP is filled with enthusiastic students willing to learn, support to parents interested in their children's development, education, and dedicated professional staffs committed to providing students with the quality education. Our staff of GHRP, being qualified, sincere, and always determined, handle the student with love and affection and make the student feel at home, so that they are comfortable in interacting with the teachers. So, once again I welcome all the dignitaries on the dais. I will not take your much time because all of you are eager to show your talents on the dais. So, thank you very much. Take immense pleasure to introduce our today's guest of honor, Mr. Manish Upadhyay. Edupreneur, a passionate people's trainer and motivational speaker. His highly interactive and engaging method of conducting training is incomparable. Having an extensive experience and receptive nature along with smart entertaining presentation skills helps make the training sessions interesting with captive audience. Manish Upadhyay sir has worked in the area of cooperative training and possesses an experience in coaching over 40,000 participants on soft skills, insurance basis, selling skills, and personality development. Having a 4+ years of corporate experience, Manish Upadhyay sir is mechanical engineer and has a MBA from School of Communication of Management Studies, Cochin. From last 6+ years, Manish Upadhyay sir is working very hard for learners in training and development industries. On this high note, I request Mr. Manish Upadhyay sir to share some word of experience with us. Okay, when I say good morning, so I should feel कि there are human beings are available in front of me, right? So good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Yeah. So now I can feel there are all human beings, right? Delegates on the dais, off the dais, faculty teachers of this wonderful institution, organizing committee of Aradhna, and last but not the least, my dear students. I welcome you all in the world of opportunities. You must be thinking, sir, आप तो guest of honor है, हमने आपका वेलकम करना चाहिए, आप हमारा वेलकम क्यों कर रहे हो? तो what I want to say, यहाँ पे मेरा ब्रीफ प्रोफाइल पढ़ा गया, मेरे बारे में काफ़ी कुछ बोला गया, बट एक वर्ड मिसिंग था और वो इंटेंशनली मिस किया गया था ताकि मैं यहाँ पे शेयर करूँ. वो वर्ड जिसने मेरी लाइफ बदल दी, वो वर्ड जिसके कारण मैं आज खड़ा हूँ, वो वर्ड जिसके कारण मुझे बोलने के लिए बड़ा अच्छा महसूस होता है. मैं अपना प्रोफाइल फिर से वो वर्ड के साथ बोलना चाहूँगा. This is childhood stutter Manish Upadhyay, who is engineer, having did his degree in MBA, MTech, having a 6+ years of corporate experience, having a global certified corporate trainer, NLP trainer, what you can say the best training certification in the world. लाने वाला व्यक्ति था जो बचपन में हकलाता था. यहाँ पे ये स्टटर वही चीज बोलेगा जो उसने अपने लाइफ में अप्लाई किए. एक डायलॉग आपने सुना हुआ होगा, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, राइट? किसका है ये? राउडी, राइट? बट यहां पे मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं, जो मैं करता हूं वो मैं बोलता हूं, जो मैं नहीं करता वो मैं नहीं बोलता. इट्स ऑल अबाउट वॉक द टॉक. जो भी मैंने मेरे लाइफ में किया है, मैं हार्डली 10-15 मिनट्स में आपके लिए मैं शेयर करूंगा. आराधना का मतलब क्या है? मैं आने के पहले जस्ट अपने
डिक्शनरी में अपने मोबाइल में मैं चेक कर रहा था, आराधना का मतलब होता है पूजा, अर्चना, इबादत। पूजा अर्चना जब हम बात करते हैं तो कब होती है? पूजा तब होती है जब हम कोई चीज के लिए हमारा विश्वास स्ट्रांग होता है। मेरा क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि हमारा विश्वास स्ट्रांग कब होता है? हमारा विश्वास तब स्ट्रांग होता है जब हमारा उसके प्रति 100%, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा 100 से 200% ट्रस्ट रहे। यह विश्वास ऐसा ही है जैसे शॉपकीपर जब अपनी शॉप ओपन करता है और ओपन करते ही अगरबत्ती लगाता है, इस विश्वास के साथ कि आज उसके पास ग्राहक आने वाले हैं। यह विश्वास उसी तरह है जैसे एक रॉक स्टार स्टेज पे परफॉर्म करने के पहले स्टेज को विजुअलाइज करता है कि मैं कैसे दिखूंगा, मैं जब गिटार बजाऊंगा तब लोग मुझे कैसे देखेंगे, तालियां कैसे बजाएंगे, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहेगी, वो रॉक स्टार वहां पे महसूस करता है। बट आजकल ये विश्वास बड़ा कम हो गया है। मैं अगर स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूं तो स्टूडेंट्स मेरे पास काफ़ी, मेरा एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के मेंटरिंग और कोचिंग में गया है। स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर मैं इंजीनियर हूं बट मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है। सर मैं इंजीनियर तो हूं बट मेरे घर में जॉब के लिए मुझे फोर्स किया जा रहा है। सर मेरा पैशन कुछ और बोलता है, मेरी क्वालिफिकेशन कुछ और है। ऐसे समय पे मैं अपना ट्रस्ट कैसे क्रिएट करूं? ऐसे समय पे मैं कैसे अपने आप को पर्सनली डेवलप करूं? मैं आते समय मेरे साथ जो सर थे मैं उनसे डिस्कस कर रहा था, सर आजकल के यंगस्टर्स को बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें करनी रहती है। एम आई राइट? एम आई राइट? एग्जाम भी दो, पर्सनैलिटी भी डेवलप करो, जॉब भी लो और सोशल गैदरिंग भी करो, राइट? तो मैं आपसे कुछ 3 बेसिक स्टेप्स मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने मेरे पर्सनल लाइफ में अप्लाई की है और इसके थ्रू मुझे पर्सनल ब्रेक थ्रू मिला है। ब्रेक थ्रू मीन्स आप पहले ये एंगल में थे और वंस यू हैव अप्लाइड दैट टूल्स यू हैव चेंज कंप्लीटली, राइट? द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू शेयर इज चेंज योर स्टोरी। इनफैक्ट हम सभी अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, राइट? एक सेल्फ टॉक रहता है। यहां से कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम ये गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? रेज द हैंड। ये स्टूडेंट्स इसके पहले जब बोल रहे होंगे कि मैं तो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता हूं, मैं कभी डांस नहीं करता हूं, मैं कभी फैशन शो में पार्टिसिपेट नहीं करता हूं, मैं स्टेज पे नहीं जाता हूं। वो बोलते हैं ना, एक हिंदी में डायलॉग है, अपना ऐसी है। तो ये अपना ऐसी है, इसको चेंज करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमें अपने आप को कंटिन्यूसली बोलना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूं। रिसर्च सेज एज, लाइक if we talk about the age up to 35 we can change our belief system, we can change our patterns of thinking। अगर हम थिंकिंग चेंज कर सकते हैं हम रिजल्ट्स चेंज कर सकते हैं। देयर इज अ कोट फ्रॉम मोहम्मद अली सेज फेक इट टिल यू मेक इट। हम अपने आप को बोलते रहें कि मनीष यू लुक्स गुड टुडे, तो ऑटोमेटिकली दिल वाले जैसी फीलिंग आएगी कि हाँ आज शाहरुख खान जैसा महसूस हो रहा है, राइट? एट द सेम टाइम अगर मैं अपने आप को यही बोलते रहूंगा कि यार आज मैं महसूस अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो दैट विल कम आउट। सो क्रिएट योर चेंज योर स्टोरी। द सेकेंड वन इज ओपन योर माइंड। इट्स नॉट अबाउट कि माई कंपनीज नेम इज ओपन बॉक्स, बट आई वॉन्ट टू से अगर आप अपना माइंड ओपन करोगे तो आपको क्या होगा। उसके पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहूंगा। एक बहुत पुरानी एडवर्टाइजमेंट है, आप सुन के बोलिएगा आपको कैसा महसूस हुआ। निकलने दो पाँव, जुरावे बहुत है, किताबों के बाहर किताबें बहुत है। बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, क्यूरियोसिटी
यूनिवर्सिटी से बड़ी कोई टीचर नहीं। पार्ले जी आओ बनाए। सोशल गैदरिंग है, इतना तो बनता है। ओपन योर माइंड। अब मैंने बोला कि अपने आप का सेल्फ टॉक करो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बैक में बैठते हैं, सबसे लास्ट। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द बैक बेंचर्स, है ना। मैं भी पीछे बैठता था। अब आप जब पहली बार अपने आप को बोल रहे हैं कि यार सर ने बोला है मुझे अपनी स्टोरी चेंज करना है, मुझे लास्ट बेंच से उठ के दूसरे बेंच पे पहुंचना है, वहां जाके मुझे बैठना है। बट वहां जाने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या लर्निंग आपकी हो रही है, राइट। आपको देखना पड़ेगा कि आजू बाजू क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप वहां पे जाने के बाद पहले आपको डर महसूस जैसे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहे हैं सर फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे आ रहे हैं, हो सकता है आज हम अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, हो सकता है डांस करते करते मेरा कैरियर टेढ़ा हो जाए, हो सकता है मैं फैशन शो में जाऊं और मैं देखूं और कोई मुझे ताली ना करे। रहते ना यहाँ पे ऐसे करके फैशन शो में, राइट। तो जब हम यहाँ पे फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है हमें उतना रिस्पॉन्स ना मिले, है ना। हो सकता है मुझे नया कुछ करने में डर महसूस हो। कितने लोग हैं जो यहाँ पे डर महसूस करते हैं? हाथ खड़े कीजिए। नहीं, मैं स्प्राइट नहीं बोलूंगा, स्प्राइट पीजिए करके, राइट। तो जो लोग डर महसूस करते हैं, आई फील दे आर ऑल ह्यूमन बींग्स, है ना, क्योंकि इंसान को ही डर लगता है। बट हाँ, यही डर अगर आपको आगे आने के लिए मोटिवेट करता है तो यस, यू कैन चेंज योर लाइफ। ओपन करेंगे, गलती करेंगे तो ही हम सीखेंगे। आइंस्टाइन सेज इफ यू आर नॉट डूइंग एनी मिस्टेक्स मीन्स यू आर नॉट ट्राइंग समथिंग न्यू। अगर गलती कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, तो शाबाशी देने का। कैसे? आजकल जमाना बड़ा खराब है, शाबाशी अपने को ही देना रहता है, ऐसा, राइट। एक बार कीजिए सब, फास्ट। आपको शाबाशी देना पड़ेगा क्योंकि मैंने कुछ तो भी नया किया। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड माय फेवरेट, चेंज योर स्टेट। इट हैज बीन सेज the success is all about 80% psychology and 20% mechanics. So when I talk about psychology, when I am trying something new to act actually in this classroom or in this world or in this social gathering, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो मुझे डर महसूस होगा। बट डर को मैं इमीडिएट कैसे रिमूव कर सकता हूँ? इमीडिएट विद इन स्पैन ऑफ टाइम, एक चुटकी में कैसे दूर कर सकता हूँ? उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है चेंज योर फिजियोलॉजी, है ना। आप जहां पे बैठे वहीं बैठे रहिए और मैं जो बोलता हूं मेरे साथ आप बोलिए, है ना। आप थोड़ी स्ट्रेट बैठिए, राइट। अभी आपको जो बोलना है, जो मैं बोलूंगा वो आपको बोलना है। आपको बोलना है यस आई कैन डू इट। खाना ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, यस आई कैन डू इट। कितने लोगों को अच्छा महसूस हुआ? आप देख सकते हैं इसमें से 90% लोगों को अच्छा महसूस हुआ क्योंकि दे हैव चेंज एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज। बेस्ट एग्जांपल आपको समझ में आएगा, हमने सिंघम मूवी देखी है। सिंघम में जब अजय देवगन जब आता है स्क्रीन पे तो हमें कैसा महसूस होता है? वो चलते रहता है, करंट यहाँ फ्लो होता है, राइट। और जब मूवी खत्म होती है तो फिर जो लोग भी ऐसे निकलते हैं जैसे सिंघम, तो दे विल जस्ट कम आउट विद द चेंज बॉडी लैंग्वेज। अपना एकदम से बोलना सिंघम, right? So you immediately change your body language will change, your psychology will change, your psychology change, your action will change, your action will change, your results will change, right? So this is all 3 steps. अगर तालियां बजाना है तो खुल के, अगर ये 3 स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं तो इट क्रिएट्स अ पर्सनल ब्रेक थ्रू इन योर लाइफ। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इफ यू कैन अप्लाई दिस तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। यस, दिस इज द टाइम फॉर मैजिक ऑफ मस्ती, मैजिक ऑफ ट्रस्ट, मैजिक ऑफ फेल्यूर, मैजिक ऑफ लर्निंग, मैजिक ऑफ एक्सप्लोरेशन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। यहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कॉलेज एंड द टीम ऑफ इंस्टीट्यूशन की इस तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पे बच्चा अपना पर्सनैलिटी ओपन कर सकता है। आप देखिए आप क्या हो।
अभी हमें एकदम से डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, जस्ट अपने आप को एक्सप्लोर करो, ओपन करो. दिस इज द राइट एज, बिलीव मी, दिस इज द राइट एज. At last, I want to say, if you are doing what you are doing, you will be getting what you are getting. हिंदी में बोलता हूं, अगर आप वही कर रहे हैं जो करते आ रहे हैं, आपको वही मिलेगा जो मिलते आ रहा है. अगर आप कुछ नया चाहते हैं दोस्तों, नया करना पड़ेगा तो ही नया कुछ मिलेगा, अदरवाइज भूल जाओ. हम सोचते बहुत हैं, करते बहुत कम है, राइट? So it is time to take new action to build new results, right? I am thankful to Raisoni Group for inviting me on this a very special occasion. And एक मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है, अगर माइक और स्टेज मिल जाता है तो मुझे छोड़ने का जी नहीं करता है, right? But anyway, I am just living this podium, है ना? और I am thankful that I got these fantastic faces जो मुझे हरदम एनर्जी देते हैं. Thank you guys. Anil Onkar sir. Anil sir, he has done BE and MTech from VNIT Nagpur. He had designed various machines and production processes. He had filed 9 patents for product design and holding a patent for multi-purpose Panchakarma treatment unit. He also has industrial experience of 34 years in manufacturing business since 1983. He has associated to education since 10 years as a subject expert for production design, entrepreneurship, personality and management. He is faculty for personality development programs at Rameti and Vanamati by Government of Maharashtra to train MPSC recruits. On designer panel Khadi and Village Industries Commission, Government of India. On curriculum development committee at Government Polytechnic Nagpur. He is Vice Chairman, Institute Management Committee, Government ITI Nagpur District, Chandrapur, and member of Institute of Engineers, Institute of Industrial Engineering, Indian Society for Technical Education, and also he is a finalist in Economic Times National Business Ideas Competition 2009. So I request here Anil Onkar sir to share some experience with us. On the dais, faculty members and my young engineer friends. Very good morning to all of you. By the way, good morning क्यों बोलना? Why do you say good morning? With no reason? Or there is a reason? There is a thought behind it. जिसको मैं गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ उसके मॉर्निंग गुड जाना चाहिए, वरना हम गुड मॉर्निंग तो बोलते जा रहे हैं, दिमाग में क्या है, सामने से कोई आ रहा है जो आपको पसंद नहीं है, बोलते तो गुड मॉर्निंग है, मन में क्या सोचेंगे, इसकी क्या मॉर्निंग गुड जाए, बैठ जानी चाहिए. तो गुड मॉर्निंग बोलना है तो दिल से बोलना चाहिए, तो आपको फील आएगा कि सामने वाले की मॉर्निंग गुड जाए, साथ में मेरी भी जाए, और मॉर्निंग क्या दिन भी गुड जाएगा. सो वॉट एवर यू से, इट शुड बी फ्रॉम योर फीलिंग. नाउ यहां पर कुछ बातें मेरे बारे में कही गई. नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ए पर्सन takes one track and moves on the single track. एक बार कहीं चिपक जाए, नौकरी लग जाए और हम वही करते रहे, चेंज करने का मन ही नहीं होता. क्या है, 10 से 5 काम करो, 5 के बाद टीवी देखो, घूमो फिरो, सो जाओ, नेक्स्ट डे फिर वही बोरिंग, कोई लाइफ में चार्म ही नहीं आता. एंड दैट वॉज द रीज़न. चार्म नहीं है, चार्म के लिए मैंने खुद को कई बार बदल कर देखा. पहले सर्विस की, आई लेफ्ट द सर्विस, आई स्टार्टेड एज एंटरप्रेन्योर, स्टार्टेड डेवलपिंग द प्रोडक्ट्स, फाइल द पेटेंट, गॉट द पेटेंट, वर्क एज ए visiting faculty also, and work in some NGOs and some organization also.
So when you start working in a different field, your personality start changing. You start knowing different people. You start getting inputs from the different people. Like here also, you are going to get inputs from different quality people. यहाँ पर एक सिंपल स्टोरी जो मुझे सबसे अच्छी लगी मेरे लाइफ में, वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। एक पर्सन जिनका बिजनेस है, उनको कुछ काम था, यहाँ से कई 100-150 किलोमीटर दूर दूसरे सिटी में जाकर कोई बिजनेस की बात करनी थी, कोई मीटिंग करनी थी। अब ऐसे ही आज का जैसा प्लेजेंट दिन है वैसा प्लेजेंट डे, उन्होंने मॉर्निंग में तय किया कि चलो डिस्टेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, उस सिटी में जाएंगे, वहाँ मीटिंग के लिए कुछ समय तय किया गया है, उस समय के पहले पहुँचेंगे और वहाँ पर जाकर अपना कोई फ्रेंड है, फ्रेंड से पहले बात भी करेंगे, मिलेंगे भी और मीटिंग भी अटेंड करके बिजनेस करके वापस आएंगे। सो स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। खुद की गाड़ी है, ड्राइव करते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय था, काफ़ी अर्ली निकले हैं। उस दिन का कोई डायरेक्शन फिक्स था, उस हिसाब से उन्होंने अपनी यात्रा चालू की। अब जैसे निकले, अब आपको पता है अभी माहौल कैसा है, बाहर में ग्रीनरी है, खास करके आप जब बाहर जाओ तो हिल्स है। ऐसे ही कुछ हिल्स से गुजर रहा था, ग्रीनरी देख रहा था, और मालूम है कि ग्रीनरी जब देखते हैं तो ड्राइविंग की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, थोड़ा आदमी एंजॉय करते जाता है। आफ्टर सम टाइम सामने में उसको एक स्पॉट नजर आया, रोड के ऊपर कुछ वाइट स्पॉट। ही वॉज क्यूरियस और थोड़ा गाड़ी स्लो किया, देख रहा था कि व्हाट इज दैट स्पॉट। थोड़ा नजदीक जाने के बाद उसको ध्यान में है कि वहां पर एक खरगोश, रैबिट बैठा हुआ है, छोटा सा रैबिट। वैसे रैबिट पहले ही छोटा होता है, वो उससे भी छोटा था, बच्चा था। अब उस बच्चे को देखने के बाद नॉर्मली किसी को भी क्या लगेगा, कितना प्यारा रैबिट है, बहुत अच्छा रैबिट है। और अगर वो हिल डुल नहीं रहा है, शांत बैठा हुआ है, तो तुरंत इच्छा जागती है कि भाई इसको पकड़ लो। उसके साथ वही हुआ, इच्छा हुई कि इसको पकड़ लो। गाड़ी रोकी, पार्क की, धीरे से उतरा, स्लोली उसने मूव करना शुरू किया, धीरे 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 उस रैबिट के पास जा रहा है। अब उसको पकड़ने पर अब कैच ही करना है, उतना ही बाकी, इतना। अच्छा, रैबिट हिल नहीं रहा है बिल्कुल, इट वॉज वेरी क्वाइट। अब इसको तो पक्का लगा कि भाई इसको पकती है, इसकी बॉडी इतनी बड़ी, जाने को जगह ज़्यादा लगेगी, उसको रास्ते पूरे मालूम है अंदर के, इसको कुछ पता नहीं, फिर भी ये फॉलो कर रहा है उसको। और फॉलो करते करते अंदर चला गया, जंगल में चला गया, और रैबिट इसको मिलने का नाम ही नहीं। जो रैबिट लग रहा था आसान है, वो मिल नहीं रहा था। कुछ समय चला गया, तब इसको ध्यान में आया कि मैं तो रैबिट के पीछे भाग रहा हूँ, मुझे जाना कहाँ है। आई हैड सम अपॉइंटमेंट। तब घड़ी देखी, पता चला कि कुछ समय वेस्ट हुआ है। गड़बड़ में बाहर आया, बाहर आने के बाद खुद की तरफ देखा, कहीं पर मट्टी लगी थी, कहीं पर स्क्रैच आए थे, कपड़े खराब हो गए थे। अब इस कपड़े से तो मीटिंग में नहीं जा सकते। भागा दौड़ा, गाड़ी भगाई, उस सिटी में पहुंचा। दोस्त को पहले ही फ़ोन कर दिया था, भैया ये प्रॉब्लम है, जरा मेरे लिए कपड़े रेडी रखना। फॉर्चुनेटली दोस्त के कपड़े फिट हो गए, उसको समाओ। उसने कपड़े चेंज किए, दोस्त से बात करना, गपशप करना दूर रह गया। भागा उस ऑफिस में, वहाँ ऑफिस में पहुँचा, टेबल के पास अपना कार्ड निकाला, वो रिसेप्शन में दिया। मैडम, आई एम सो एंड सो, आई एम हैविंग अपॉइंटमेंट विथ योर मैनेजिंग डायरेक्टर। मैडम ने कहा, सर प्लीज सिट डाउन, आई विल इन्फॉर्म यू। वो कार्ड अंदर गया, कार्ड वापस आया, कार्ड के साथ में मैसेज आया, सॉरी सर, यू आर लेट, वी हैव ऑलरेडी अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट टू समबडी एल्स। व्हाट हैपेंड इन द होल स्टोरी? घर से प्लान करके निकला था, उस दिन का उसका टारगेट था फ्रेंड से मिलना, फ्रेंड के साथ समय बिताना और उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करना। बट बिकॉज ऑफ रैबिट के पीछे भागने से वो अचीव नहीं कर सका। स्टोरी उस पर्सन की नहीं है, स्टोरी हमारी सबकी है।
क्या हमारे लाइफ में आते हैं ऐसे रैबिट? कोई बता पाएगा? आते कि नहीं आते? यस और नो? वैसे आपका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। वैसे मैं नॉर्मली जब बात करता हूँ, अगर क्लोज में होता हूँ तो लोग बड़े अच्छे रैबिट बताते हैं। कोई बताता है टीवी, मोबाइल, व्हाट्सअप, और कुछ होनहार और ऑनेस्ट लोग होते हैं, वो बताते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सी, आज हम क्या करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे हमारी लाइफ बनने वाली है। आज का हमारा एम क्या है, किस एम से हम यहाँ आए? हम अपने आप को यहाँ डेवलप करने आए हैं, फ्रॉम द एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ओवरऑल डेवलपमेंट। इस पर अगर हम फोकस करेंगे तो आगे का कुछ हमें मिलने वाला है। इस स्टोरी को मैंने कई साल पहले, लॉन्ग बैक मैंने सुना है। यह स्टोरी मुझे तो काम आई है, ये स्टोरी मेरे बच्चे को भी काम आई है, जो इस कॉलेज के पास स्टूडेंट रह चुकी। आज मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है, मेरी बेटी एमटेक कर रही है। दे हैव प्रोग्रेस अ लॉट बिकॉज हर बार उन्होंने ये सोचा कि आज मेरा एम क्या है, इस साल का मेरा एम क्या है, 5 साल का मेरा एम क्या है, और वेदर आई एम गोइंग आफ्टर द रैबिट्स। मेरे लाइफ में रैबिट है क्या? कोई चीज आज रैबिट है, कल शायद रैबिट नहीं होगी। कौन से वक्त पर कौन सी चीज रैबिट है आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसी से प्रोग्रेस होता है। एंड देन सेकेंडली, जस्ट एज आई टॉक अबाउट योर एम, क्योंकि एम की बात चल रही है, तो एम भी रखना पड़ता है, और एम चेंज होता है, एम में एडिशन होती है। नॉर्मली क्या होता है, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन आई गो टू द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट टू ट्रेन दिस MPSC कैंडिडेट्स, तो काफी लोगों का कैसा देखा है, सर अभी एक बार अफसर बन गए, अब कुछ नहीं करना है। बट देर आर फ्यू पीपल, नहीं सर हम UPSC बैठने वाले हैं, हम IAS बैठने वाले, लाइक दैट देर आर फ्यू पीपल। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर अचीविंग वन एम, दे आर कीपिंग अनदर एम। अगर आपके पास जिस दिन माइलस्टोन नहीं है, आप काम करना बंद कर दोगे। एक बताओ, कौन सबसे बढ़िया बॉलर है, तेज बॉलर? मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं क्रिकेट देखता नहीं। कौन है फास्टेस्ट बॉलर? हाँ, सो मुझे नाम नहीं सुनाई दिया, बट जो भी आपका फास्टेस्ट बॉलर है, उस बॉलर को 5 मिनट के अंदर मैं फेल करके दिखा सकता हूं, 5 मिनट के अंदर। और कब? जब आप बैटिंग कर रहे हो, आप बैट लेकर खड़े हो ग्राउंड में, और वो दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर आपको बॉलिंग कर रहा है, उसको मैं फेल करके दिखा सकता हूं। सिंपल है, आपके पीछे के स्टंप्स निकाल लो, उसको बोला डाल बॉल, उसने इधर बॉल डाला आप इधर, उसने इधर डाला आप उधर, आप बॉल को खेल ही नहीं रहे हो। कल क्या बोलेगा, अरे भाई कम से कम स्टंप्स तो रख यार, वहां पे स्टंप्स ही नहीं है, उसको स्टंप्स नहीं है, वो बॉल नहीं डाल सकता, आपके सामने एम नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। यू मस्ट हैव एम, यू मस्ट रिनोवेट योर एम एवरी टाइम। आज यहां पर इतने सारे एंथुजियास्टिक लोग आए हैं, क्योंकि कॉलेज में 1000 लोग होते हैं और यहाँ पर 15-20% लोग गैदरिंग में पहुंचते हैं, बाकी लोग छुट्टियां घर में मनाते हैं। मैंने भी पहले साल यही गलती की थी कि मैं छुट्टी मनाने घर को चला गया था, बट नेक्स्ट ईयर आई रियलाइज, देन आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। तो पार्टिसिपेट करना जरूरी है, जो लोग नहीं आए उनको जरूर बताना, यू मिस समथिंग। सो यहाँ पर हम लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, इस पर पूरा ध्यान देकर। आज ये जो आराधना, जैसे सर ने, मनीष सर ने बताया कि यू आर वर्किंग फॉर समथिंग विथ योर डिवोशन, यू आर वर्किंग फॉर योर प्रोग्रेस, तो उस पर आज काम करना, इसलिए आज ये ऑस्पिशियस डे है। तो इस ऑस्पिशियस डे में
डे के लिए एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इस कॉलेज ने मुझे बुलाया। और वैसे भी यहाँ से जब भी इनविटेशन आता है मैं आता हूँ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे इसी कॉलेज की देर हैं। दे स्टडीड हियर एंड दे डेवलप्ड हियर। सो वंस अगेन आई थैंक all the management and the faculty members for inviting me here, and I thank students for giving a pay. Management from Nagpur University. Started career in the year 9. Started being assistant and has been associated with Tata Group Company, Bajaj Electrical Limited and KEC International Limits. He joined Mahindra Forgings Limited, Pune in the year 2008 in school and college days. He also represented Maharashtra State in handball. On this high note, I request Mr. Pradeep Zoting sir to share word of experience with us. अरे बोलो ना बाबा, अभी तो बोलो। तीसरे स्पीकर को तो डबल बोलने मत लगाओ। I said good morning. वेरी गुड। सीरियस टॉक होना है कि मजाक करना है, मस्ती करना है? हाँ, सीरियस टॉक चाहिए या मजाक मस्ती करना है? ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो एंजॉइंग मूड में है सब लोग। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिर आपको ऑल द बेस्ट कर देता हूँ और अपना स्पीच ख़त्म कर देता हूँ। चलेगा? नहीं ना? आई विल टेक जस्ट 2 minutes, ओके? देखो दोस्तों, जिंदगी में अगर कामयाब बनना है तो क्या इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? मेरे हिसाब से लगता है अपने आप से प्रामाणिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन आई से अपने आप से प्रामाणिक होना, मतलब अभी तक के जो स्पीकर्स ने बात करी है, स्पेसिफिकली मनीष साहब ने बताया कि इंसान ने अपने आप से प्रामाणिक होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इंजीनियरिंग करने में, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको क्रिकेट अच्छा नहीं लगता तो फिर क्रिकेट के मैदान में नहीं जाना चाहिए, बराबर है ना? नहीं तो इंजीनियरिंग होने के बाद में बोलेंगे कि मेरे को फोटोग्राफी का शौक है, तो उसमें कोई मतलब बनता है क्या? कोई मतलब नहीं, बराबर है ना? तो अपने आप से प्रामाणिक रहो। और जो लोग अपने आप से प्रामाणिक नहीं होते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मेरे को एक आधा तो भी इंसान बताओ या एक आधा तो भी बड़ा आदमी ऐसा बताओ जो प्रामाणिक नहीं था और सक्सेसफुल हुआ। ऐसा कोई उदाहरण है कि अपने सामने? आई थिंक देयर इज नो एग्जाम्पल। वेयरएज जो लोग अपने आप से प्रामाणिक थे, जो डिटरमाइंड थे, जिन्होंने सोचा था, वो जिंदगी में बहुत बार फेल हुए लेकिन आखिरी में सक्सेसफुल हुए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना? तो उसमें से क्या नज़र आता है अपने को? अगर अपने आप को ज़िंदगी में एक सफल इंसान बनाना है, एक अच्छा नागरिक अगर बनाने का है, अच्छा स्पोर्ट्समैन अगर बनना है, अच्छा अगर इंजीनियर अगर बनना है, अच्छा व्यक्ति अगर बनना है, तो अपने आप से प्रामाणिक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने अपना मूड जाहिर कर दिया कि आज मौज मस्ती के मूड में हो। लेकिन इसमें भी सीखने लायक बात है। क्यों ये सब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहिए? आपने मेरे बायोडाटा में देखा कि मैं सब गेम खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले एवरी गेम, जहाँ सिलेक्शन हो वो गेम मैं खेलता था। क्यों खेलता था? पार्टिसिपेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आप किसी भी फील्ड में जाओ, किससे डील करने वाले हो? पत्थर से नहीं ना, इंसानों के साथ में रहने वाले हो। जो भी जिंदगी के अमूल्य जीवन के जो पल है वो आप इंसानों के साथ में गुजारने वाले हो। इसलिए लाइव दिल, जिंदा दिल रहना बहुत ज़रूरी है। आपके चेहरे पे वो मुस्कान रहना बहुत ज़रूरी है। और वो कब आएंगी? जब तुम मैक्सिमम समय अपने जीवन का ऐसे लोगों के साथ में व्यतीत करोगे। और वो समय व्यतीत करने के लिए हर चीज़ में पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़रूरी है। फेलियर और सक्सेसफुल तो जिंदगी के पहलू है, तो चलते रहेंगे। सोमवार को फेल हो गया, मंगलवार को पास हो गया, बुधवार को फेल हो गया, गुरुवार को पास हो गया। ऐसे करते करते ही तुमको पास होने की आदत लगेगी या कामयाब होने की आदत लगेगी। इसलिए मित्रों, पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो आराधना का इतना बढ़िया